السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں احسن رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ سب سے پہلے بات سندھ حکومت کی جی آئی ٹی رپورٹس کی تو سندھ حکومت نے 3 جی آئی ٹی رپورٹس پبلک کر دی۔ عزیر بلوچ، نثار مورائی، ثانیہ بلدیہ کی جی آئی ٹیز شامل ہیں۔ جی آئی ٹیز محکمہ داخلہ سندھ کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ مزید اس پر اپڈیٹ جانیں گے ہمارے نمائندے مظاہر سعید سے۔ جی مظاہر، سندھ حکومت نے 3 جی آئی ٹیز پبلک کر دی ہیں، کیا کیا انکشافات ہوئے ہیں ان رپورٹس میں؟ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے 3 جی آئی ٹیز پبلک کر دیں۔ عزیر بلوچ، نثار مورائی، ثانیہ بلدیہ کی جی آئی ٹیز شامل۔ جی آئی ٹیز محکمہ داخلہ سندھ کی ویب سائٹس پر موجود ہیں۔ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی رپورٹ 36 صفحات پر مشتمل ہے۔ عزیر بلوچ کو 7 کیسز میں چالان کیا گیا، 10 ماہ جیل میں رہا، ایسا کہا گیا ہے رپورٹ میں۔ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی میں سالہ رکنی سٹاف کا بھی ذکر ہے۔ عزیر بلوچ کے پاکستان اور دبئی میں غیر قانونی اثاثوں کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ جاری ہوتے ہی محکمہ داخلہ کی ویب سائٹ عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ سندھ حکومت نے 3 جے آئی ٹیز پبلک کر دی۔ عزیر بلوچ، نثار مورائی، ثانیہ بلدیہ کی جے آئی ٹیز شامل ہیں۔ جے آئی ٹیز محکمہ داخلہ سندھ کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی رپورٹ 36 صفحات پر مشتمل۔ عزیر بلوچ کو 7 کیسز میں چالان کیا گیا، 10 ماہ جیل میں رہے۔ عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی میں 16 رکنی سٹاف کا بھی ذکر کیا گیا۔ عزیر بلوچ کے پاکستان اور دبئی میں غیر قانونی اثاثوں کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ جاری ہوتے ہی محکمہ داخلہ کی ویب سائٹ عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ سندھ حکومت نے 3 جے آئی ٹیز پبلک کر دی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عزیر بلوچ، نثار مورائی، ثانیہ بلدیہ کی جے آئی ٹیز شامل ہیں۔ جے آئی ٹیز محکمہ داخلہ سندھ کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی رپورٹ 36 صفحات پر مشتمل ہے۔ عزیر بلوچ کو 7 کیسز میں چالان کیا گیا، 10 ماہ جیل میں رہے۔ سینئر تجزیہ کار ندیم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ان کا تجزیہ لے دیتے ہیں۔ ندیم صاحب بہت شکریہ۔ جی آئی ٹی رپورٹس منظر عام پر آ چکی ہیں اور ان رپورٹس میں سنسنی خیز انکشافات بھی ہوئے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ انکشافات جتنے بھی ابھی ہو رہے ہیں یہ تو کافی وقت سے یہ چلے آ رہے ہیں مسلسل یہ بنیاد پہ، اور ابھی اس کو ہائپ وہ اس لیے زیادہ ہو گئی جو علی زیدی نے پارلیمنٹ میں جس طرح سے تقریر کی اپنی، وہ سارے عزیر بلوچ سے وابستگیاں وہ ظاہر کی۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ کراچی میں ایک دور رہا ہے قتل و غارت گری کا کہ لوگوں کو کڈنیپ کر لیا جاتا تھا اور کسی کو نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ یہ لیاری کا ایریا جہاں سے ان کا تعلق ہے وہ بڑا ایک پیسفل ایریا ہوا کرتا تھا، وہاں پہ گو کہ منشیات کاروبار یہ قائم پاکستان سے پہلے سے یہ سارا کچھ چل رہا تھا، تو کبھی بھی اس طرح قتل و غارت گری نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس کو کہیں کہ سیاسی مفادات کے تحت یا کس طرح سے ان کی پشت پناہی کی گئی۔ عزیر بلوچ، ان کے کئی ساتھی ظفر بلوچ وہ مارے بھی گئے، وہ اور ان کے کافی سارے جو لوگ تھے اس کے بعد جب آپریشن ہوتا ہے وہاں پہ لوگ مارے جاتے ہیں، یہ نکل جاتے ہیں پھر۔ تو ایک کراچی کی جو سے تعلق رکھتے ہیں، میرا تعلق کراچی سے ہی ہے، ہم نے کافی دیکھا وہاں پہ ایک خوف کی فضا کا عالم تھا۔ شہر کے اندر علاقے ڈیوائیڈ تھے کہ کس طرح سے لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرتے تھے، خوف کا عالم رہتا تھا اس دور میں کراچی میں کہ اگر صبح کوئی نکلا شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کو معجزہ تصور کیا جاتا تھا۔ پھر ایسے میں سیکیورٹی داروں نے، رینجرز نے جب ٹھانی کہ شہر سے دہشت گردی کو صاف کرنے کے لیے، کیونکہ باقاعدہ طور پہ علاقے ڈیوائیڈڈ تھے کہ پل سے اس طرف کوئی نہیں جا سکتا تھا، آئی ایچ چندی روڈ سے آگے کا ایریا سارا جو اولڈ کراچی جو کہلاتا تھا وہاں پہ ان کا بہت گہرا اثر تھا۔ یہ پورا جنوبی کا جو علاقہ سارا، یہ کھارا در، لیاری، یہ ادھر سارے رنچوڑا اس سائڈ پہ، تو ایک وہ رہا ہے۔ لیکن جب سے رینجرز نے آپریشن کیا، روزانہ کی بنیاد پر دہشت گرد مارے گئے، پھر وہ کراچی سے اس مضافاتی اس ایریا سے لیاری سے نکل کے شہر کے دیگر علاقوں میں گئے، ملیر میں اس طرف گئے۔ لیکن پھر ابھی ہم دیکھتے ہیں شہر میں پچھلے 2-3 سال سے جو امن کی فضا قائم ہے وہ اسی لیے ہے کہ جب سیکیورٹی داروں نے شہر کو دہشت گردوں سے پاک کرنا چاہا تو وہ پاک کر دیا۔ تو پھر جو چیزیں آئیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا گیا، ایک بالکل ایک امن کمیٹی کراچی میں بنائی گئی،
جس کی بنیاد پہ یعنی کہ شہر میں بیلنس سے قائم کرنے کے لیے کہا جائے کہ پیپلز پارٹی کی چھتری کے نیچے یہ جماعت بنی ساری کی ساری، تو وہ جب سے ان کی گرفتاری ہوئی، ان کو پکڑا، ان کے جو لوگ مارے گئے، اس کے بعد سے شہر میں سکون کا عالم ہے. لیکن ہاں جو جی آئی ٹی میں انکشاف کیے گئے ہیں اس کے اوپر درست سمت میں اگر تحقیقات ہوں تو ماضی کی طرح بھی کافی جی آئی ٹی آتی رہی ہیں، لیکن اس کا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو ہے اس کو منطقی انجام تک اگر پہنچایا جائے تو پھر جو وابستگیاں نکلتی ہیں وہ ایک اہم بات ہوگی، لیکن اس کے ہنوز دلی دور است. سر، جیسا کہ علی زیدی جو وزیر پورٹ اینڈ شپنگ ہیں، انہوں نے بھی پارلیمنٹ کے اندر تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان پیپلز پارٹی کو اور ذمہ دار قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گرد جماعت ہے، جبکہ جے آئی ٹی میں ان افراد کا تعلق ایم کیو ایم سے بھی جوڑا گیا ہے. دیکھیں، وہ انہوں نے کہا پارٹی کو کیسے کوئی الزام لگا سکتا ہے کہ دہشت گرد جماعت ہے، اس کے کیا ثبوت ہیں کسی کے پاس. ایک پوری پارٹی کو دہشت گرد کہہ دینا ایک یہ بھی بہتر نہیں ہے. اور یہ پیپلز پارٹی سے یعنی کہ اس کا تعلق جوڑا جاتا تھا کہ امن کمیٹی اس طرح سے وہ ان کی ایک اپنی پیرل ایک وہ جماعت تھی اور پھر اس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو قرار دینا دہشت گرد، ایسے تو کل کوئی اور دوسری بھی جماعت کو قرار دے سکتا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن جب جی آئی ٹی بنی ہے اس کے اندر جو بھی انکشافات سامنے آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ جو 36 صفحات پہ مشتمل جی آئی ٹی ہے اس کے اندر جو بھی ہے اس کی روشنی میں کارروائی کی جائے، اس کی روشنی میں کارروائی کی جائے. ندیم رضا صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق آئی جی سندھ افضل شگری صاحب. افضل شگری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. سندھ حکومت نے 3 جے آئی ٹیز پبلک کر دی ہیں، کیا کہیں گے؟ تو عدالت کا حکم تھا تو اس لیے پبلک کر دی گئی ہے، اور چاہے اس میں جو انکشافات ہیں اور جو واقعات ہوتے رہے ہیں کراچی کے اندر ان کا تذکرہ ہے، اور وہاں پہ جو آپ کا جو آرگنائز کرائم ہے اس کا رول کا اصل میں ذکر ہے. اور یہی ایک خوفناک بات ہے کہ کراچی جیسے شہر میں ایسے لوگوں کو اگر اجازت تدفنے کی دی جائے تو ظاہر ہے وہاں کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہونا ذرا مشکل ہو. صحیح. افضل شگری صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ آج سے پہلے بھی بہت سی جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے منظر عام پر آتی رہی ہیں، بہت سے کیسز بھی آئے ہیں، لیکن آج تک کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچا. یہ رپورٹس بھی پبلک ہو چکی ہیں، یہ کس طریقے سے منطقی انجام تک پہنچیں گے؟ بات یہ ہے کہ اگر کسی پہ آپ جب چارج لگاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی آفنس کیا ہے یا ان کا کوئی اس قسم کا واقعہ ہے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کو عدالت میں جو ثبوت ہے وہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کو پھر ایک ایویڈنس لا ہے اس کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اگر وہ پروف ہو تب کارروائی ہو سکتی ہے. صرف ایک رپورٹ پہ اور صرف کسی کرمنل کے کنفیشن سے یا اس کے بیان سے آپ کسی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. صحیح. افضل شگری صاحب، ہمارے ساتھ ندیم رضا صاحب بھی موجود ہیں. ندیم صاحب، جیسے کہ آپ نے افضل صاحب کی باتیں سنی کہ صرف رپورٹ کی بنیاد پر کسی کے اوپر ایلیگیشنز نہیں لگایا جا سکتے، اگر دیکھا جائے تو پھر ہر طرف الزامات کی سیاست ہی چل رہی ہے. میں نے کہا نا کہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، کوئی چیز بھی الزام ثابت ہونے سے پہلے ہی الزامات کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے، پریس کانفرنسیں کی جاتی ہیں. میرے نزدیک یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی معاملہ عدالت میں ہو تو اس کے اوپر کوئی رائے زنی نہیں کر سکتا. اسی طرح سے یہاں پہ بھی یہ قانون لاگو ہونا چاہیے کہ جو بھی پکڑا گیا اس کو فوری دہشت گرد قرار دے دینا، اور پھر اس کے جو وابستگیاں جوڑ دینا کہ پارٹی کوئی جماعت ہے اسی کو جماعت کو دہشت گرد قرار دینا. تو یہ ایک غلط ہے. ہم صحافت کی زبان میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی ہوتا ہے تو اس کو مبینہ کہا جاتا ہے کہ مبینہ دہشت گرد. جب تک ثابت نہ ہو جائے ایک آدمی ملزم ہے اس کو ڈائریکٹ مجرم وہ جب ہوگا جب عدالت اس کو قرار دے، تحقیقات سے ثابت کر دے کہ یہ اس نے جرم کیا ہے تو پھر وہ مجرم بنتا ہے. تو یہاں ہمارے ہاں جو ہے الزامات کی جو سیاست چلی آ رہی ہے یہ بھی ایک وہ ٹھیک وہ نہیں ہے طریقہ کار. جب جے آئی ٹی بن گئی ہے، ایک بڑے اداروں نے جے آئی ٹی کی ہے، اس میں جو بھی ثابت ہوتا ہے چیزیں تو بالکل اس کے مطابق سزا دینی بھی چاہیے. جس سے سیاسی وابستگیاں ہیں ان کے نام پھر ظاہر کیے جائیں. لیکن اگر پہلے سے ہی آپ کر دیں گے، آپ اس کو مشکوک بنا دیتے ہیں، یہ عنصر جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. جو ہماری سیاست میں جو پینیٹریٹ کر چکا ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی ڈائریکشن ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا.
صحیح افضل شگری صاحب، جیسے کہ ندیم رضا صاحب نے بھی کہا کہ بہت سی ڈائریکشنز پہ عمل کرنا ہوگا، الزامات کی سیاست سے گریز بھی کرنا چاہیے. کراچی کا امن ایک عرصے دراز تک خراب رہا، اس کا کریڈٹ رینجرز کو جاتا ہے، مگر ان رپورٹس میں جو انکشافات ہو رہے ہیں کیا ان ملزمان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے حکومتیں کردار ادا کریں گی؟ ندیم رضا صاحب، شاید افضل شگری صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، یہی سوال آپ سے بھی چاہوں گا کہ کریڈٹ تو رینجرز کو جاتا ہے کراچی کے حالات کو پرامن کرنے میں، تو کیا اب منطقی انجام تک حکومتیں پہنچائیں گی ان افراد کو؟ یقین نہیں ہے کہ رینجرز نے جس طرح سے کراچی میں دہشت گردوں کا صفایا کیا، وہاں پہ رہزنی کی وارداتیں بھی دن رات ہوتی تھی. کراچی کا شاید ہی کوئی اس زمانے میں کوئی گھر ہو، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، کہ کوئی لوٹا نہ ہو، کسی کا موبائل نہ چھینا ہو، موٹر سائیکل نہ چھینی ہو. اس طرح کے واقعات گھروں کی دہلیز کے اوپر لوٹ لیا جاتا تھا. گو کہ صحیح گھروں کی دہلیز پر لوٹ لیا جاتا تھا، اور حکومت کو اس کے اوپر موقف اپنا واضح کرنا پڑے گا. افضل شگری صاحب سابق آئی جی سندھ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، ندیم رضا صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ. تحقیقاتی افسروں گواہوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. بانی متحدہ کے خلاف دہشت گردی منی لانڈرنگ کیس کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں اون شرازی. 4 سال گزرنے کے باوجود کراچی میں MQM لندن کے حامی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد کے اثر و رسوخ کا انکشاف ہوا ہے، جس کے باعث وفاقی حکومت نے تحقیقاتی افسر، پراسیکیوٹر، گواہان اور ثبوتوں کو ممکنہ خطرات کے پیش نظر بانی MQM کے خلاف دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کا کراچی میں انڈر ٹرائل کیس انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد منتقل کرنے کی منظوری دے دی. معاملے کی تحقیقات کے لیے برطانیہ اور کینیڈا سے رابطہ کی صورت میں ہائی کمیشن، دفتر خارجہ، انٹرپول کے دفاتر اسلام آباد میں ہونے کے باعث وقت اور وسائل کو بچایا جا سکے گا. دوسرے شہر منتقل ہونے کی صورت میں متعلقہ چیف جسٹس کی اجازت لینا بھی ضروری ہے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے سیکشن 28 کے سب سیکشن 1 کے تحت کیس کو منتقل کرنے کے لیے کابینہ کی منظوری درکار تھی. وزارت داخلہ کی سمری پر وزیر اعظم نے بانی MQM کے خلاف دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کا کیس کا ٹرائل اسلام آباد منتقل کرنے کے لیے کابینہ ارکان سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لینے کی ہدایت کی تھی. اس معاملے کو قانون انصاف ڈویژن کے ذریعے سندھ ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. سید اون شرازی، سچ نیوز، اسلام آباد. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اب بات شہر قائد کے موسم کی، تو شہر قائد میں مونسون کی انٹری، مختلف علاقوں میں بادلوں نے رنگ جما لیے. کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. بوندے برستے ہی کہ الیکٹرک کی کارکردگی بھی کھل کر سامنے آنے لگی. کراچی کے علاقے ملیر، گلشن اقبال، فیڈرل بی ایریا اور شارع فیصل سمیت دیگر علاقوں میں ابر رحمت برسا، جس سے گرمی کے 27 شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. دوپہر تک پارہ 40 ڈگری تک چھوا، لیکن اچانک گلشن حیدر سے بادلوں نے انٹری دی، کالی گھٹا چھائی اور بارش شروع ہوئی. شہریوں کو برسات کی خوشی کے الیکٹرک نے خراب کر دی. بارش شروع ہوتے ہی شہر کے اکثریتی علاقوں میں بجلی غائب ہوئی. کے الیکٹرک کی جانب سے احتیاطی تدابیر جاری کرتے ہوئے عوام سے بجلی کے کھمبوں اور ٹوٹی ہوئی تاروں سے دور رہنے کی اپیل کی. ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بارش سے قبل سسٹم کی بہتری کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. کراچی میں بادل خوب جم کر برسے. آسمان سے پانی کی بچھاڑ سے شہر میں جل تھل ایک ہو گیا. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. مزید اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندہ اشرف سولنگی سے. جی اشرف. جی بالکل، کراچی میں اس وقت بھی ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. وقفے وقفے سے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت بھی بارش ہونے سے جو ہے شہری بڑا خوش ہیں. دکھا سکتا ہے کیمرہ مین کے شہری انجوائے بھی کر رہے ہیں بارش، کیونکہ شہر قائد میں مونسون کی پہلی بارش ہوئی ہے. لیکن بارش کی وجہ سے مختلف مقامات پر، مختلف سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یقیناً بارش سے شہری خوش بھی ہوئے ہیں تو وہیں پر کچھ پریشان بھی ہیں، کیونکہ جو سیوریج کے نالے ہیں اور ندی نالے اور مختلف جو
इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा चंद रोज़ तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे शहर कायद का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार होगा, जबकि जो दर्जा हरारत है उसमें भी खासी कमी का इम्कान है। और रात में आंधी के साथ जो है बारिश का सिलसिला जारी रहने का भी कहा गया है। जी शुक्रिया अशरफ सोलंकी। आसमान से बरसते बादल कराची वालों के लिए जहमत बन गए। मुख्तलिफ इलाकों में छतें और दीवार गिरने के अफसोसनाक वाकयात सामने आने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज से। जी शाहिद। जी बिल्कुल कराची 2020 की पहली बारिश की तबाकारी है। कोरंगी इब्राहिम हैदरी में करीब घर की छत गिरने से 2 अफराद जाबाज, 1 शख्स जख्मी। जाबाज जख्मी होने वालों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐसे कि लियाकताबाद अंगोरा गोट में भी घर की दीवार गिरने से खातून जाबाज हुई। कोरंगी सेक्टर 33G के अंदर जो दरख्त गिरने से 1 शख्स जाबाज हुआ। मलिर मेमन गोट में घर की दीवार गिरने से 5 साल बच्चा जख्मी हुआ। इसी के साथ कोरंगी गरीब नवाज स्टॉप के करीब एक लोहे का बोर्ड शेड गिरने के बाद के इलेक्ट्रिक के ऊपर गिरने से जो है एक बंदा जख्मी हुआ। और औरंगी टाउन मोमिनाबाद के करीब भी करंट लगने से एक बच्चा जाबाक हुआ। जाबाक होने वाले बच्चों को आबादी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जी शुक्रिया शाहिद एजाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस गए। पानी जमा होने से सड़कें तालाब बन गईं। बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम अब्र रहमत बाइस से जहमत बन गया है। आपको बता रहे हैं कराची का मौसम तो बदल गया मगर हालात नहीं बदले। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं लेकिन सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं और ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया है। ट्रैफिक जैम अब्रे रहमत बाइस जहमत। कराची में मॉनसून की एंट्री। ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए कराची वालों ने समंदर के साहिल का रुख कर लिया। कराची में ठंडी हवाओं के आंचल से खेलते सुरमई बादल छाए तो गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। हवा के साथ खेलते बादलों ने अपना दामन निचोड़ा और सूरज की हिद्दत से तपती जमीन ठंडी हो गई। ऐसे में कराची वाले कहां घर बैठने वाले थे। आसमान से अब्र रहमत बरसा तो गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग से सताए शहरी कोरोना की परवाह किए बगैर साहिल समंदर पर पहुंच गए। बारिश के बरसते कतरों में समंदर की लहरों के साथ शहरी सारा दिन छुपन छुपाई खेलते रहे। फैमिली के साथ आने वालों ने बच्चों और जीवन साथी के साथ खूब सेल्फियां बनाई और दोस्तों के साथ आने वालों ने दोस्ती की यादगार को तस्वीरों में डाला। सी व्यू कराची में बसने वालों और कराची के सैर के लिए जाने वालों के लिए पसंदीदा पिकनिक पॉइंट है। गहरे बादल, ठंडी हवा और बारिश का मौसम कराची में रहने वालों का घर में रहना नामुमकिन हो जाता है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में लोड शेडिंग का अफरीत बेकाबू हो चुका है। शहर कायद में अंधेरों का राज कि इलेक्ट्रिक के आगे सब बेबस नजर आने लगे हैं। शॉर्टफॉल जीरो होने के हुकूमती दावों के बरक्स लोड शेडिंग अरूज पर। गर्म मौसम में तवील बंदिश अवाम के लिए वबाले जान बन गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दुरानिया बढ़ने से शहरी अजियत में मुब्तला। कोई पुरसाने हाल नहीं, कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर होने लगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। वुज़रा, अदालती अहकामात, सियासी जमातों और अवाम के एहतजाज तक हर तदबीर के इलेक्ट्रिक के आगे नाकाम हो चुकी। अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, महमूदा आबाद, मंजूर कॉलोनी, गुजर चौक, PECH सोसाइटी, गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, अल हलाल सोसाइटी, KDA स्कीम 7, लियाकताबाद C1 एरिया, गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 19, गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 8, अजीजाबाद, करीमाबाद, सदर, II चंडीगढ़ रोड और मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात से बिजली की फराहमी मुअत्तल है तो कहीं बिजली ने आना और जाना लगा रखा है कि इलेक्ट्रिक इन इलाकों में भी लोड शेडिंग कर रही है जो मुस्तस्ना करार दिए जा चुके हैं, जहां कोरोना वायरस के मरीजों को करंटीना किया गया है। आज बिजली की तलब 23,628 मेगावाट रही। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि आज सिस्टम में बिजली की पैदावार 24,000 मेगावाट रही। मुल्क भर में आज शॉर्टफॉल जीरो है। तर्जुमान का मजीद कहना है कि तमाम तकसीमकार कंपनियों को तलब के मुताबिक बिजली की फराहमी जारी है।
आपको बताएं कि आज बिजली की तलब 23,628 मेगावाट रही। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि आज सिस्टम में बिजली की पैदावार 24,000 मेगावाट रही। मुल्क भर में आज शॉर्टफॉल 0 है। अब बात करेंगे पाक लेन रेफरेंस की, तो इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में पाक लेन रेफरेंस केस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज करते हुए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने पार्क लेन रेफरेंस की समाअत की। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक अदालत में पेश हुए। साबिक सदर की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में हाजिरी लगाई गई। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने फर्द जुर्म आयद न करने की दरख्वास्त दायर की, जिस पर एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए वीडियो लिंक के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको चाहिए था कि ये दरख्वास्त पहले दायर करते। फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि उसके लिए पढ़ना पड़ता है, चीजें निकालनी पड़ती हैं। गवर्नर स्टेट बैंक के लिए कानून के मुताबिक नोटिस देना जरूरी था। जानबूझकर डिफॉल्ट की गई कंपनी के लिए कानून वाज़ेह है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि अब इस दरख्वास्त पर हमें नोटिस जारी कर दें, हम आज ही आधे घंटे में बहस करेंगे। फारूक एच नाइक ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के मौक़िफ़ पर जवाब देते हुए कहा कि प्रोसिक्यूटर को इस केस में इतनी जल्दी क्या है, इसके अलावा भी बहुत से केसेस हैं, इस केस में जल्दी क्यों है। उन्होंने अदालत में कहा कि हमें मुनासिब वक्त दिया जाए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि जवाब नैब को दाखिल करना है, तो जवाब के लिए तो हमें मोहलत मांगनी चाहिए थी। वकील सिफाई अपनी दरख्वास्त दायर करके खुद वक्त मांग रहे हैं। रेफरेंस नकूल देने के बाद 7 दिन में फर्द जुर्म आयद करना जरूरी है। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि 1 माह का स्टे ऑर्डर नहीं मांग रहे, आइंदा मंगल को ये केस समाअत के लिए रख लें, मुझे रिसर्च करनी है। जज आजम खान ने कहा कि इस रेफरेंस को दायर हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है। केस की आइंदा समाअत पर आसिफ अली जरदारी की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नैब जवाब दाखिल करेगा। अदालत ने केस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन अरशद हुसैन सत्ती के साथ मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ मजीद सबूत सामने आ गए। खादिम आला पंजाब ने 10 सालों में फैमिली मेंबरान से करोड़ों रुपए वसूल किए। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना क्या मनफी आया, साथ ही नैब की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में मजीद पेशरफ सामने आ गई। नैब की जानिब से जारी दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बीवी और बच्चों से करोड़ों रुपए नकद और तोहफे के तौर पर लिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने फैमिली मेंबरान से 10 सालों में 4,27,46,678 रुपए वसूल किए। शहबाज शरीफ ने अपने बेटे हमजा शहबाज से 2008 में 1,59,95,338 रुपए लिए, जबकि अपनी अहलिया नुसरत शहबाज से 2009 और 2010 में 73,50,000 रुपए के तहाइफ भी लिए। नून लीग के सदर ने अपने दूसरे बेटे सुलेमान शहबाज से 2017 से 2019 तक 1,94,01,340 रुपए वसूल किए, जबकि नैब दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ को रकूम इनके अकाउंट में मुंतकिल की गई। नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ से कैश में मौसूल होने वाली रकूम से मुतालिक तफ्तीश दरकार है, जबकि नैब ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और नुसरत शहबाज और सुलेमान शहबाज का बैंकिंग रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत न हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की अदालती तातीलात पर होने की बिना पर केस की लिस्ट मनसूख कर दी गई। गुज़िश्ता समाअत पर तीसरी बार कायम बेंच ने चौधरी बरादरान की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। इससे पहले 2 बेंचों के अरकान जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस असजद जावेद गुराल के इनकार पर दोनों बेंच तहलील हो गए थे। चौधरी बरादरान का मौक़िफ़ है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने का इरादा रखती है। नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालतें फैसले दे चुकी हैं। चेयरमैन नैब ने 19 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया है। चौधरी बरादरान का मौक़िफ़ है कि चेयरमैन नैब को 19 साल पुरानी और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। कराची की एहतसाब अदालत ने शर्जील इनाम मेमन के शरीक मुल्जिमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत में मुल्जिमान वसीम और शौकत की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दोनों मुल्जिमान को कोरोना वायरस हो गया है, इसलिए उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हे सारा, जल्दी, लेट हो रहे हैं। मेरे बगैर नो सेल्फी।
Wait, no need of flash. Because with Sunsilk Black Shine, हम करें shine 24/7. Sunsilk Black Shine, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल की ताकत के साथ। ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करें शाइन 24 hours। तो अब मेरे बालों का शाइनिंग ग्लो will never go. लिप्टन जागे उनके लिए जो वाकई अहम है। लाइफ बॉय की जानिब से एक पब्लिक सर्विस मैसेज। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए साबुन से हाथ धोने की आदत अपनाएं। साबुन से बार बार हाथ धोएं या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत। कैनन होम अप्लायंसेज, चले साल हा साल, कारकर्दगी बेमिसाल। क्या आपका निखार खो गया है? नहीं, सिर्फ छुपा है डेड स्किन सेल्स के नीचे। नया पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी फेस वॉश, इसका स्पॉट रिडक्शन फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स को क्लियर करे और नई सेल्स को उभारे ताकि आपका निखार साफ चमके। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी फेस वॉश, पाएं स्पॉटलेस स्किन हर दिन। कैनन हुड, पावरफुल सक्शन, टच पैनल, मोशन सेंसर और एलईडी लाइट के साथ। कैनन होम अप्लायंसेज, चले साल हा साल, कारकर्दगी बेमिसाल। आपने अक्सर मुझे लाइफ बॉय को प्रमोट करते हुए देखा है, पर आज मैं कहूंगी कि जो भी साबुन है आपके पास उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि साबुन से हाथ धोना कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता है। हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम पबजी की मुअत्तली के खिलाफ दरखास्त पीटीए को भिजवाते हुए निपटा दी। अदालत ने हुक्म दिया कि पीटीए कानून के मद्देनजर रखकर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी करे। पाबंदी लगानी है तो कानून का हवाला दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने ऑनलाइन गेम पबजी की मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीए के वकील से इस्तफसार किया कि ये गेम है या वेबसाइट, जिस पर पीटीए की जानब से जवाब दिया गया कि ये लिंक है जिसको पीटीए ने आर्जी तौर पर मुअत्तल किया है। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि इसमें ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आपने मुअत्तल किया। पीटीए के वकील ने जवाब दिया कि लाहौर पुलिस ने पबजी गेम के खिलाफ एक खत लिखा था जिसमें खुदकुशियों का जिक्र किया गया था। वालिदैन की जानब से हमें पबजी गेम ब्लॉक करने की दरख्वास्त दी गई थी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पीटीए ने जो कुछ करना है कानून के मुताबिक ही करना है। पाबंदी लगानी है तो लिखें फलां कानून की खिलाफ वर्जी के तहत पाबंदी लगाई गई है। अदालत ने दरख्वास्त पीटीए को भिजवाते हुए हुक्म दिया कि पीटीए कानून को मद्देनजर रखकर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला दे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पीटीए दरख्वास्त मंजूर या मुस्तरद करते हुए मुतल्लिका कानून का जिक्र करे। पीटीए के वकील ने कहा कि पीटीए 8 जुलाई को दरख्वास्त गुजार को सुनकर फैसला करेगा। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर हाई कोर्ट में प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से फीसों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत हुई। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने स्कूलों की जानिब से 8% इजाफे की वापसी का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू प्राइवेट स्कूल्स में जेर तालीम तलबा के वालिदैन के वकील सफदर शाहीन पीरजादा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को 5 से 8% तक फीसों में इजाफा करने की हिदायत की थी। अदालत ने इसके लिए कवायद ज़वाबित भी वज़ा किए थे, मगर स्कूलों की जानिब से इन्हें नजरअंदाज करते हुए 8% इजाफा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के वकील ने अदालत को बताया कि फीसों में 8% इजाफे का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है और प्राइवेट स्कूलों को फीसों में 5% इजाफे की हिदायत जारी की है। अदालत ने नोटिफिकेशन वापस लेने पर केस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी। एक साल में आटे का 20 किलो थैला 204 रुपए महंगा हुआ। कीमत 844 से बढ़कर 1050 रुपए तक पहुंच गई। माली साल 2019-20 में महंगाई की शरह में 10.74% इजाफा हुआ, जबकि जून 2020 में अफराते ज़र की शरह में 8.6% तक रही। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। एक साल में कौन सी चीज कितनी महंगी हुई? सरकारी दस्तावेज ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में आटे का 20 किलो का थैला 204 रुपए तक महंगा हुआ, जिससे कीमत 844 से बढ़कर 1050 रुपए तक पहुंच चुकी। एक साल के दौरान चीनी 8 रुपए 79 पैसे फी किलो महंगी हुई, जिससे चीनी की कीमत 72 रुपए से बढ़कर 81 रुपए फी किलो तक पहुँच चुकी। जुलाई 2019 से जुलाई 2020 में टमाटर 27 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ।
हुआ। इसी अरसे के दौरान सुर्ख मिर्च 109 रुपए, मुर्गी का गोश्त 39 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ। एक साल में अंडे 33 रुपए फी दर्जन, गुड़ की कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक दाल मूंग 92 रुपए, दाल माश 68 रुपए, दाल मसूर 34 रुपए, जबकि दाल चने की कीमत में 10 रुपए फी किलो तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई 2019 से जुलाई 2020 में चावल 6 रुपए फी किलो महंगा हुआ। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक छोटा गोश्त एक साल में 80 रुपए और बड़े गोश्त की कीमत में 41 रुपए तक इजाफा हुआ। एक साल के दौरान आलू की कीमत में 26 रुपए, लहसुन 3 रुपए फी किलो महंगा हुआ। जुलाई 2019 से जुलाई 2020 के दौरान दूध की कीमतों में 7 रुपए फी लीटर, खुश्क दूध 390 ग्राम 46 रुपए तक महंगा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक घी 50 रुपए फी किलो, चाय 190 ग्राम 19 रुपए, दही 5 रुपए और केले की कीमत में फी दर्जन 3 रुपए तक इजाफा देखा गया। 30 जून को खत्म होने वाले माली साल में औसतन महंगाई 10.74% रही। माली साल 2018-19 में औसतन महंगाई की शरह 6.80% रही। जून 2019 के मुकाबले में जून 2020 तक आलू 72%, मूंग की दाल 71%, माश की दाल 46%, अंडे 44% और मक्खन 37% तक महंगा हुआ। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मसूर की दाल 35%, लोबिया 30%, मसाले 30% तक महंगे हो गए। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले हमले की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त सामने आई है। हमले में दहशतगर्दों के कब्जे से लाइव कैमरा भी बरामद होने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में लाइव कैमरे के जरिए ऑपरेशन मॉनिटर किया जा रहा था। दहशतगर्दों के कब्जे से मिलने वाला मोबाइल फोन से भी अहम मालूमात हासिल कर ली गई हैं। लाइव कैमरे के जरिए हमले का मास्टरमाइंड दहशतगर्दों से राबते में रहा। चारों दहशतगर्द बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशी थे। 2 दहशतगर्द कैच, 1 होशाब और 1 दहशतगर्द पंजगोर का रिहायशी था। वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं कि पैगाम पाकिस्तान कौमी बयानिया बन चुका है, फर्द फर्द तक पहुंच रहा है। हमें मुत्तहिद होकर इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की साजिशों को नाकाम बनाना है। मजलिस उलमाए पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। अपने खिताब में वफाकी वजीर मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि पैगाम पाकिस्तान पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है। मजहबी हम आहंगी और रवादारी को फरोग देना होगा। मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी, मजलिस उलमा पाकिस्तान के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद और दीगर उलमाए कराम का कहना था कि हम इत्तेहाद ही के जरिए इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को नाकाम बना सकते हैं। भारत खित्ते का अमन सबूताज करने से बाज न आया। बुज़दिल भारतीय फौज ने रात की तारीकी में एलओसी पर फिर बिला इश्तियाल फायरिंग करके शहरी आबादी को निशाना बनाया। अर्ज़े पाक की सरहदों के मुहाफिजों ने दंदाने शिकन जवाब देकर दुश्मन को खामोश करा दिया। भारतीय सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब भी किया गया। मोदी सरकार की तरह भारतीय फौज का जंगी जुनून थमने का नाम नहीं ले रहा। लद्दाख में चीनी फौज के हाथों दुर्गत बनने के बाद भी बुज़दिल भारतीय फौजी हमसायों से छेड़छाड़ करने से बाज न आई। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए नक्याल सेक्टर में गुज़िश्ता रात तारीकी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे 2 कमसिन लड़कों और 2 खवातीन समेत 5 शहरी जख्मी हो गए। सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त चौकन्ना पाक फौज के जवानों ने दुश्मन को उसी की जुबान में जवाब देकर खामोश करा दिया। भारतीय फौज इससे पहले भी आए दिन सरहदी खिलाफ वर्जियां करते हुए पाकिस्तान की शहरी आबादी पर अपना नाम निहाद बहादुरी की धाक बिठाने की कोशिश करती है, मगर हर बार बुज़दिल दुश्मन को मुंह की ही खानी पड़ती है। और अब बात करेंगे कोरोना की, तो हुकूमती इक़दामात काम दिखाने लगे हैं। मुल्क में कोरोना सिमटने लगा। वायरस में मुब्तला मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। हलाकतों की तादाद में भी काफी हद तक कमी आ गई। मुल्क में कोरोना का जोर टूटने लगा। कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतयाबी में तेजी से इजाफा हो रहा है। वायरस से मुतासरा 1,31,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस के ताज़ा इदादोशुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3,344 नए केसेज रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से सिर्फ 50 अफराद जाँ बहक हुए, जो कि माजी की निस्बत बहुत कम तादाद है। 44 अफराद अस्पतालों और 6 का इंतकाल घरों में हुआ। कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद
तादाद 4762 हो गई। NCOC के मुताबिक बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता रोज कोरोना वायरस से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। गुज़श्ता 24 घंटों में 22,271 टेस्ट किए गए और अब तक मुल्क में 14,20,623 टेस्ट किए जा चुके हैं। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 94,528, पंजाब में 81,963, खैबर पख्तूनख्वा में 28,116, बलोचिस्तान में 10,814, इस्लामाबाद में 13,494, आजाद जम्मू कश्मीर में 1,342 और गिलगित में कोरोना केसेस की तादाद 1,561 हो गई है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। मजमूई तौर पर कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी की शरह हौसला अफजा है। ईद उल अजहा पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। SOPs पर अमल दरामद न होने से कोरोना के फैलने का खदशा मौजूद है। तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद तालीमी इदारे खोलने का फैसला होगा। खुशखबरी सुना रहा हूँ, खुशी की बात है कि कोरोना के केसेस बलूचिस्तान में तेजी से कम हो रहे हैं और हमारे लोग, खसूसन कोयटा के लोग, मैं दाद देता हूं कि वो SOPs पे कदरे बेहतर है उनकी अमल दरामद पहले के मुकाबले में। मजीद अगर वो अमल दरामद करते हैं आपके केसेस बहुत कम होंगे। आपको याद होगा लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जो डिटेल शेयर किया 18.6% था आपका वीकली कोविड की शरह, वो अब 16% तक कम होती हुई दिखाई दे रही है और मजीद भी इसमें कमी आ सकती है अगर हम SOPs पे अमल दरामद करें। अदरवाइज अगर केसेस में इजाफा होता है तो फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट स्मार्ट लॉकडाउन के तहत फिर एरिया वाइज हम मुख्तलिफ सेक्टर्स, मुख्तलिफ एरियाज वो बंद कर देंगे और फिर भी अगर लोगों ने ताउन नहीं किया, केसेस बढ़ते रहे तो फिर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी हम जो है मुख्तलिफ एरियाज को जो है मुकम्मल बंद कर देंगे। खेल के मैदान से आपको बताएं तो स्नूकर्स क्लब मालिकान भी अपने क्लब्स खुलवाने के लिए मैदान में आ गए हैं। लाहौर प्लस क्लब के सामने एहतजाज करके हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें क्लब्स खोलने की इजाजत दी जाए। वो कोरोना की रोकथाम के लिए दी गई SOPs पर मुकम्मल अमल करेंगे। वकार हुसैन इस पर रिपोर्ट करेंगे। ये लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने वाले स्नूकर क्लब्स मालिकान हैं जो अपने क्लब्स खुलवाने के लिए हुकूमत से मुतालिबा कर रहे हैं। उनका कहना था कि क्लब्स बंद होने की वजह से उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। हुकूमत क्लब्स खोलने की इजाजत दे, वो कोरोना की रोकथाम के लिए दी गई SOPs पर मुकम्मल अमल करेंगे। हमारे कारोबार को खोला जाए, हमारा खिलाड़ी भी बेकार होकर बैठा है, हमारे मुलाजमीन भी बैठे हैं और मालकान भी बैठे हैं और पिछले 4 माह से हमारे ऊपर किराया भी चढ़ गया, हम किराए के नीचे भी दब गए हैं और हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही। उनकी प्रैक्टिस नहीं हो रही जिसकी वजह से पंजाब कप की तैयारी में भी दुश्वारी आ रही है। तो आप लोगों से इल्तमास है कि काइंडली हमारे जो है कारोबारों को बहाल किया जाए। हाथों में प्ले कार्ड्स थामे स्नूकर क्लब्स मालिकान का कहना था कि जब मार्केट्स और बाजारों को खोला जा सकता है तो उन्हें क्लब्स खोलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। SOPs पे अमल करेंगे, जिस तरह ये कहेंगे हम उसी तरह अमल करने को तैयार हैं। हमारी तो टेबल का डिस्टेंस भी 6 बाई 12 फुट का है, उसमें एक प्लेयर खेलता है और दूसरा इंतजार करता है बैठ के बारी का। शदीद गर्मी में एहतजाज करने वाले क्लब्स मालिकान का कहना था कि क्लब्स बंद होने की वजह से वो कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं। अब उनके पास इतने वसाइल नहीं कि वो किराए की मद में रकम अदा कर सकें। स्नूकर क्लब मालिकान पे एक ऐसा बोझ बढ़ा है जो बोझ बढ़ने से उन्हें घर चलाने मुश्किल हो गए हैं। 4 माह के किराए, बिजली के बिल, पानी के बिल, PDCL के बिल जो बंद क्लब में अदा कर रहे हैं हम। दुश्मन के 5 जंगी तैयारे 1 मिनट में मार गिराने वाले पाकिस्तान एयरफोर्स के जांबाज स्क्वाड्रन लीडर MM आलम की आज 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मोहम्मद महमूद आलम 6 जुलाई 1935 को भारत के शहर कोलकाता में पैदा हुए और 1953 में पाक फिजाइया में शमूलियत इख्तियार की। MM आलम ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1965 की जंग में शुजात और बहादुरी की ऐसी लाजवाल तारीख रकम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। अपनी हवाबाजी के कारनामों से स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने दुश्मन को नाकों चने चिपवा दिए। पाक भारत जंग में सरगोदा के मुहाज पर दुश्मन के तैयारों के साथ डॉग फाइट के दौरान 5 इंडियन हंटर जंगी तैयारे 1 मिनट के अंदर मार गिराए, जिनमें से 4 30 सेकंड के अंदर मार गिराए थे। देखते रहिए सच न्यूज।